Good evening, students. Today, I am going to make a video on the topic pH and pOH and the pH of weak acid and strong acid, strong base and weak base, as well as buffer solutions. So actually, I wanted to do the class, live class actually, but the students of class 11 and 12 all are asking for a video of pH. So today I'm making a detailed video on pH, which will be helpful for you for the uh, question solving or MCQ solvings of previous year NEET, JEE, and for your entrance examinations also. Okay. So let us see. Actually, pH and pOH are used to measure the acidic and basic strength. Actually, pH means the power of H plus. pH means the power of H plus. So if we can find out the power of H plus, we can find out the pH. That is, pH is equals to minus log of H plus concentration. Actually, when you see an aqueous solution of an acid, you can also write it down as minus log H3O plus. Where is it is the concentration or molarity or normality. Of the H plus ion. So pH means minus log of H plus, that is minus log of H3O plus, because in the aqueous solution H2O will be associated with H plus to produce H3O plus. So concentration or molarity or normality of the H plus. Whereas pOH is equals to minus log of OH minus. This is the concentration or molarity, or normality is the perfect unit. Okay, normality of the OH minus ions. Okay. So pH is equals to minus log of H plus and pOH is equals to minus log of OH minus. Now you should see one thing here. There is a well-known relation which is pH plus pOH is equals to 14. This is not always correct. Not always correct. Because with the increase in temperature, the pH of water changes or decreases, but the neutrality of water remains intact. What is the meaning of this statement? You should see, I will prove it now, that pH plus pOH is equal to 14. But this is not always true. I will show you how this will be calculated. Now you see, water means H plus and OH minus. So this is the product of H plus and OH minus that will be written as Kw. This is known as the ionic product of water. What is the meaning? The meaning is that total amount of H plus multiplied by total concentration of OH minus
that is equals to Kw. Kw means ionic product of water. That means ions are multiplied. That is Kw. At 25 degrees centigrade temperature, the Kw value is 10 to the power minus 14. This is the value of Kw. Okay, this is the value of Kw at 25 degrees centigrade. Now what will happen? You see, you take log in both sides. So log H plus into OH minus is equal to log Kw. Okay, so you can see the formula of log AB. This is A, this is B. The formula of log AB is equals to log A plus log B. Log A, that is the H plus that is log B, that is OH minus. Now I can write down the value of Kw here, 10 to the power minus 14. Log is there. Okay, log 10 to the power minus 14. Now what will you do? You will multiply it by minus sign. Okay, so minus log H plus minus log OH minus log 10 to the power minus 14. So as you know, pH is equals to minus log of H plus and POH is equals to minus log of OH minus. So we can write down here as this is equals to pH, that is POH, and I think you know that whenever there is a 10 to the power something in log, this power comes to the coefficient, that will be 14. So this is the relation. This is proved at 25 degrees centigrade. So this relation is valid for 25 degrees centigrade. What happens when the temperature increases? Suppose I am doing the test or experiment at 60 degrees centigrade. Now what will happen? This is a completely different phenomenon, because at a higher temperature, more amount of water is ionized, so that the value of Kw increases to 10 to the power minus 13. Now what happens? Now the value of Kw becomes 10 to the power minus 13. Now the scale will become pH plus, if you do the calculation again, we will find out pH plus POH, that is equals to 13. Now what happens? You see here, at 25 degrees centigrade, the pH plus POH is equals to 14. But at 60 degrees centigrade, pH plus POH is equal to 13. So what is the average value or neutral point? Neutral point is 14 divided by 2, that is equal to 7. Here the neutral point is 13 divided by 2, that is equal to 6.5. Now you can understand that at a higher temperature, the whole pH scale decreases, as well as the neutral points also shifts. So you should remember this one. The value pH plus POH is equal to 14 is only valid and correct at room temperature, but whenever the temperature increases, the pH scale will decrease, because initially the value of Kw was 10 to the power minus 14. Now as the temperature increases, more and more number of water has been ionized and the pH scale reduces to 13. Now you should find out the midpoint to find out the neutral point. So 13 is divided by 2, that is equal to 6.5. That means at 60 degrees centigrade, the midpoint or neutral point is 6.5. So water will remain neutral, but its pH will change from 7 to 6.5. If you increase the temperature further at 80 degrees centigrade or 90 degrees centigrade,
the Kw value becomes 10 to the power minus 12. Then the pH scale will be pH plus pOH is equal to 12 and the midpoint will be 6. So this is very, very important to understand that this formula pH plus pOH is equal to 14 is only valid at a room temperature. You should remember this one. Okay. Okay. Now further moving on, how to find out the pH. We will discuss some of the NCERT question papers also. Okay. For a strong acid, the pH is equal to minus log of H plus concentration. For a strong base, pOH is equals to minus log of OH minus. You should remember, in case of acids, you should always find out the pH. In case of base, you will always find out the pOH. After finding out the pOH, we can find out the pH by applying the formula pH plus pOH is equal to 14. So you should remember this one. Let us have some examples here. So in the examination hall, these questions came. Calculate. These are also in the NCERT. Okay. Calculate the pH of 0.001 molar HCl, 0.001 molar H2SO4, 0.001 molar sodium hydroxide, 0.001 molar calcium hydroxide. All of them are strong. Strong acid, strong acid, strong base, strong base. So how to find out the pH? Let us see. Let us see here. For an acid, we will find out the pH. You should see here. It is very important here. The concentration of H plus. You can see whenever HCl is dissociated, it produces H plus and Cl minus. Complete dissociation. 1 mole HCl is dissociated, so it will produce 1 mole of H plus and 1 mole of Cl minus. So you can see the molarity of HCl here is 0.001. So the H plus concentration is also 0.001. You can see here. You can see here. Now I will find out the pH of question number 1. Question number 1. pH is equal to minus log of H plus. pH is equal to minus log of H plus. You can see here minus log H plus का concentration कितना है? What is the concentration of H plus? You can see 0.001. Now you can do the calculation here. You can see minus log 10 to the power minus 3. So इसको सामने लेके चले आइए. Minus 3 will become 3. 3 log 10, that is equal to 3. So the pH of the HCl solution यहाँ पे कितना निकल के आया? ये आया है 3. So pH निकालना बहुत easy है actually, but you should remember the amount of H plus that is being, जो एक मोलिक्यूल से HCl का है, एक ही H plus निकल रहा है, so HCl का concentration जो है वही H plus का concentration है. But when you will see H2SO4, that is a complete different story. In case of H2SO4, you will find out that तुम लोगों को यहाँ पे निकल के आएगा H plus 2H plus और यहाँ पे आएगा SO4 2 minus. So अभी जो आपका H plus का concentration है, यहाँ पे 1 मोल H2SO4 लेने से आपको यहाँ पे 2 मोल H plus निकल के आएगा और 1 मोल यहाँ पे SO4 2 minus निकल के आएगा. So you should remember this one, that यहाँ पे आपका n फैक्टर देखना बहुत ही जरूरी है. सो आप देखेंगे यहाँ पे एक मोल H2SO4 से 2 मोल यहाँ पे H प्लस निकल के आ रहा है. तो अभी आपके पास कितना मोल और H2SO4 है? अभी देखिए आपका यहाँ पे जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो इसके लिए आप लोग लिखेंगे pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, यहाँ पे निकल के आएगा आपका 0.001 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया. क्योंकि क्यों 2 होगा? बिकॉज यहाँ पे एक ही H2SO4 से 2 मोल का H प्लस यहाँ से निकल के आ रहा है. तो इतना मोलर से कितना मोलर निकलेगा? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अभी व्हाट विल बी द आंसर? दिस विल बी माइनस लॉग 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. अभी इसका आप कैलकुलेशन कैसे करोगे? इसका कैलकुलेशन बहुत इजी है. यहाँ पे आप एक ब्रैकेट दे दीजिए.
यहाँ पे आ जाएगा log a, इसको a लिख लीजिए, यहाँ पे b लिख लीजिए, तो log ab दैट इज log 2 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा log 10 टू द पावर -3, इसको होल मल्टीप्लाई कर दीजिए आप माइनस से, तो अभी क्या होगा माइनस log 2 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस सॉरी माइनस 10 टू द पावर -3, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि वो जो यहाँ से माइनस आप यहाँ पे इंटू करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ऊपर से नीचे आ जाएगा, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, सो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 log 10, तो 3 log 10 क्या होगा आप यहाँ पे 3 माइनस log 2, log 2 का वैल्यू कितना है 0.3010, तो 3 माइनस 0.3010, सो ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे निकल के आएगा 2.7 के आसपास, 0.3010 2.7 के पास निकल के आएगा। सो आप देख लीजिए यहाँ पे एक ही कॉन्सेंट्रेशन का HCl है और एक ही कॉन्सेंट्रेशन का यहाँ पे H2SO4 है। अब देखिए दोनों का पीएच जो है वो डिफरेंट है, बिकॉज आपके H2SO4 में एक ही मोल H2SO4 से 2 मोल H प्लस यहाँ पे निकल रहा है, 2 moles of H plus has been dissociated from 1 mole of H2SO4। तो आपका जो ये pH है H2SO4 का निकालने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद रखना है कितना मोल ऑफ H प्लस यहाँ से रिलीज हो रहा है। सो सिमिलरली हम लोग अब pH के बाद POH निकालेंगे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का है, तो यहाँ पे आपको बोला गया है pH ऑफ 0.001 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको तो मालूम होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसका pH नहीं निकलता है, इसका POH निकलेगा। POH इज इक्वल्स टू व्हाट विल बी द वैल्यू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। अभी आपको पता चलेगा NaOH, इसको डिसोसिएट करने से एक Na प्लस और यहाँ पे एक OH माइनस निकल के आएगा, एक Na प्लस और एक OH माइनस यहाँ पे निकल के आएगा। तो देखिए एक मोल को निकलने से यहाँ पे आएगा एक मोल Na प्लस, उसके बाद आएगा एक मोल OH माइनस, तो आपका 0.001 मोल से कितना आएगा 0.001 मोलर OH माइनस यहाँ पे निकल के आएगा। तो इसका आप POH निकलने के लिए लॉग ले लीजिए माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, सो दिस विल बी द वैल्यू लॉग ऑफ 10 टू द पावर -3। इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो सामने आ जाएगा 3 log 10, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा आपका 3। तो POH जो आपका है वो निकल के आ गया 3, तो आपका pH कितना होगा, pH इज इक्वल्स टू, आप इसको एक सिंपली 14 से माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 11। सो दिस विल बी द pH ऑफ ए बेस। आप सब यहाँ पे आपको याद रखना है बेस का जो pH है, बेस का pH ऑफ ए बेस इज ऑलवेज जो होगा आपका ग्रेटर देन 7 होगा। ओके, सो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच हम लोगों ने निकाला है। पहले हम लोग इसका पीओएच निकालेंगे, वी विल फर्स्ट फाइंड आउट द पीओएच, देन उसके बाद हम लोग इसका जो है उसका पीएच निकालेंगे, 14 से सिंपली माइनस कर देंगे। आपको कुछ भी टेम्परेचर नहीं दिया गया है तो रूम टेम्परेचर ही मान के चलिएगा। सो यहाँ पे जो स्केल है वो 14 तक ही रहेगा, तो यही नॉर्मल केस है। और एबनॉर्मल केस में आप लोगों को पता पूछा जा सकता है, यू कैन बी आस्क्ड दैट whenever the temperature of water is increased, the pH of water decreases, does it means the water becomes acidic with the increase in temperature? आप लोगों का आंसर होगा नो, the water remains neutral, but इसका जो स्केल है वो स्केल यहाँ पे घट जाएगा because Kw value will be increased। so ये है हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल था। अभी इसका जो एक और एग्जांपल हम लोगों ने लिया था यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, आप लोग यहाँ पे इसको देख रहे होंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप निकालेंगे तो डिसोसिएट करेंगे तो इसका क्या होगा Ca2+ निकल के आएगा और यहाँ पे 2 OH माइनस निकलेंगे। तो ये से 1 मोल का कितना निकलेगा, 1 मोल का यहाँ पे 2 मोल OH माइनस निकलेगा। सो आपका इजी हो गया ना ये। सो ये कैसे होगा, आप लोग यहाँ पे पीओएच निकालेंगे, इसके लिए क्या होगा 0.001 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल से 2 मोल निकलेगा, इसके सामने माइनस लॉग बिठा देंगे तो कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा।
इसमें पीओएच निकलेगा, 14 से माइनस करोगे तो इसका पीएच निकल के आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द simplest numericals whenever strong acid and strong bases are involved. बट इसका आपका एक प्रॉब्लम है, अभी वीक एसिड और वीक बेस के बारे में जानना पड़ेगा आपको। यहाँ पे जो है एक कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी भी जानना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग काम करते हैं, हम लोग वीक एसिड के पीएच के बारे में देखते हैं। वीक एसिड इस साइड में देख लेंगे हम लोग वीक बेस के बारे में। सपोज एक वीक एसिड है, H है, इसको हम लोगों ने डिसोसिएट किया H+ और यहाँ पे निकल के आया A-, मोनोप्रोटिक। ओके, सो इसमें क्या तकलीफ क्या है हम लोगों को, वीक स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, वीक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। आपको यहाँ पे 1 मोल लिख लेंगे, यहाँ पे पहले इनिशियली 0 मोल होगा, बिकॉज यहाँ पे रिएक्शन तो अभी शुरू ही नहीं हुआ ना। T = 0 एट द इनिशियल पोजीशन। नाउ एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा, पूरा डिसोसिएट नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, 1 - अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा मोल। हम लोगों ने पिछले दिन किया था ये अल्फा मोल। सो इसका जो अब यहाँ पे हमेशा तो 1 मोल नहीं हो सकता ना, यहाँ पे एक वेरिएबल भी हो सकता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको C से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा C × 1 - अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा आपका C अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा आपका C अल्फा। इसको ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बोलते हैं। तो इसका जो Ka है, Ka मीन्स यहाँ पे Kc ही लिख सकते थे हम लोग, Kc ही लिख सकते थे, लेकिन यह जो एसिड है, दिस इज एन एसिड, दैट्स व्हाई एसिड को सिग्निफाई करने के लिए यहाँ पे Ka लिखा हुआ है। तो क्या होगा, अब हम लोगों ने पढ़ा है पिछले दिन, C अल्फा मल्टीप्लाइड बाय C अल्फा, दैट इज डिवाइडेड बाय C × 1 - अल्फा। तो इसमें क्या होगा, ये आपको ए से C कैंसल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू निकल कर आएगा C अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा। अब देखिए अल्फा, व्हाट इज अल्फा? अल्फा तो हम लोगों ने पिछले दिन देखा था, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, हाउ मेनी मोल्स हैज बीन डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल। के क्या है, यहाँ पे के है, के जो है इसको बोलते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो सी है, सी क्या है, सी है मोलारिटी। यहाँ पे अल्फा जो है, अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो जो रिलेशन यहाँ पे निकल के आ गया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो रिलेशन है के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा। अभी क्या होता है, in case of a very weak electrolyte, in case of a very weak electrolyte, वेरी वीक एसिड हो गया तो क्या होगा, ये जो अल्फा का वैल्यू है बहुत ही छोटा हो जाता है, अल्फा इज वेरी लेस देन 1। सो नीचे का जो अल्फा है इसको हम लोग नेग्लिजिबल कर देंगे, तो ये निकल के आएगा C अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू Ka। जो अल्टीमेट रिलेशन है वो है ऐसा, अल्फा इज इक्वल टू √Ka डिवाइडेड बाय C, दैट इज द अल्टीमेट रिलेशन। यू शुड रिमेंबर बोथ ऑफ देम। ओके so in case of finding out the pH of acid and bases for weak acid and weak bases, what is the concentration, you can see the H+ concentration is C alpha, H+ concentration is C alpha। तो इसका pH क्या होगा, pH होगा माइनस लॉग ऑफ C alpha, और बेस का जो pH होगा सिमिलरली हम लोग यहाँ पे करेंगे, मैंने किया नहीं है यहाँ पे, माइनस लॉग ऑफ C alpha। अल्फा निकलने का तरीका क्या है, एसिड के लिए है अल्फा इज इक्वल टू √Ka/C, और बेस के लिए क्या है, अल्फा इज इक्वल टू √Kb/C। तो हम लोग यहाँ पे 2-3 एग्जांपल देखेंगे, इसके बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल के बिना ये आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो यू शुड डेफिनेटली सी सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स। आई विल गिव यू सम वेरी simple numericals but yet important, and they can give us the whole idea of the questions. Okay, let us see
Some examples here. Suppose a numerical came. Calculate the pH of a weak acid HA when (1 liter solution). Ka is equal to 1 into 10 to the power minus 5. Okay, so this is the numerical. Okay, now how will you do this? This numerical will give you a perfect idea of the questions that will come in the examination. Okay, now this is also in the NCERT. Actually, you can find out it is in NCERT it will be written as acetic acid, but I am given here HA. तो आप लोग देखिए इसको क्या करेंगे। तो पहले आप लोग यहाँ पे देखिए HA जो है इसको हम लोग यहाँ पे डिसोसिएट कर लेते हैं H प्लस और यहाँ पे हो गया आपका A माइनस। ठीक है, हम लोगों ने देखा था इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा क्या होगा, C अल्फा होगा H प्लस का, और यहाँ पे इसका भी C अल्फा होगा। तो हम लोग का जो टारगेट है इसका पीएच निकालने के लिए हम लोग को माइनस लॉग ऑफ C अल्फा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? C अल्फा। तो आपका पहले इसके लिए C चाहिए होगा। C मीन्स मोलारिटी। C क्या है? C है आपका मोलारिटी। सो मोलारिटी हम लोग कैसे निकालेंगे देखेंगे। मोलारिटी तो हम लोगों ने निकाला ही है। इसका जो मोल है 0.01 मोल, इसको यहाँ पे बैठा देंगे। इसका जो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है, वॉल्यूम जितना है, वॉल्यूम है 1 लीटर। ओके, जेहेतु लीटर में है इसको आप लोग को कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। मोलर तो कितना मोलर हो गया? 0.01 मोलर हो गया आपका इसका मोलारिटी। तो हम लोग को सी पता है। अभी अल्फा हम लोग को पता होना चाहिए। अल्फा होने से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे बैठा देंगे, हो जाएगा। लेकिन हम लोग को अल्फा नहीं पता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर के ए डिवाइडेड बाई सी करेंगे यहाँ पे। तो क्या होगा? हम लोग क्या करेंगे? अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर के बाई सी करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा? अल्फा देखिए आप लोग, के कितना, के का वैल्यू कितना है? 10 टू द पावर माइनस 5। इसमें सी का वैल्यू कितना है? 0.01। ठीक है, तो इसमें से यहाँ पे मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास कैलकुलेटर भी नहीं है। सो कैलकुलेशन करने से जो टाइम है वो यहाँ पे मेरा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे इसको पुट करेंगे, इसका नेगेटिव लॉग ले लेंगे। ठीक है, सो उसके बाद आपका पीएच यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो हमारा जो ये न्यूमेरिकल है इसको हमने क्यों किया? हम लोग को ये एक सिंपल एग्जांपल देखना था एक वीक एसिड के बारे में, जहां पे आप लोगों को कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और यहाँ पे आपका के दिया हुआ है, उसका पीएच निकालने के लिए बोला है। ये बहुत बार ये आता है हम लोग का एबीसी में। यहाँ पे अपना बहुत सारा एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर मुझे लगता है शायद 71 से शुरू होगा, ये 80-82 तक चलेगा ये आपका ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम में। ठीक है, यहाँ पे आपको इसी तरह का बहुत सारा एग्जांपल देखने को मिलेगा। मैं आपको और 2-3 एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ। शायद मैं यहाँ पे एबीसी का ये क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब देखिए, मुझे लगता है ये 74 या 75 नंबर क्वेश्चन जो है ये हो सकता है। आप देखेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ionization constant of a acid, weak acid, whose pH is equal to 4, and the solution was made by dissolving 0.0250 mole of it in 1 liter. ओके, यही आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए बोला है। what is said in the question? You should definitely find out, you have to find out the Ka. So what is your target? You have to find out the Ka. तो हम लोग को पता ही है Ka के साथ में अल्फा का एक ही रिलेशन है यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर Ka डिवाइडेड बाई सी। ये हम लोग को पता है, अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर Ka बाई सी, ये हम लोग को
पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट टारगेट जो है, टारगेट है पहले आपको सी निकालना पड़ेगा, उसके बाद अल्फा निकालना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे एबीसी का क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे यहाँ पे, इसको आपको मिल जाएगा क्वेश्चन एबीसी में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहले आप लोग क्या क्या करना पड़ेगा, इसका मोलारिटी निकालना पड़ेगा। मोलारिटी बहुत ईजी है, मोल आपको दिया गया है, 1 लीटर को आप लोग यहाँ पे 250 ml कर देते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा होगा। तो अभी देखेंगे, तो मोल कितना है 0.250 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो गया आपका 250 मल्टीप्लाइड पे जो हो गया आपका यहाँ पे 1000, यहाँ पे एक और जीरो है, सॉरी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यह को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 घर तक यहाँ पे जाएगा 25.0 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा 250। तो अभी क्या होगा 0.1 आ जाएगा इसका मोलारिटी। तो हम लोगों ने मोलारिटी निकाल लिया और सी निकाल लिया, यहाँ पे सी हम लोगों को पता चल गया। सो वी हैव फाउंड द मोलारिटी, हम लोगों को सी यहाँ पे मिल गया, वी हैव फाउंड द सी मोलारिटी। अभी हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए अल्फा। इसके बाद हम लोग क्या निकाल सकेंगे, के। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे को पीएच यहाँ पे आप उनको दिया हुआ है, तो पीएच जो है यहाँ पे पीएच इज इक्वल टू 4, इसको लिख लेंगे यहाँ पे। तो हम लोग को पता है वीक एसिड है, यहाँ पे वीक एसिड का जो पीएच है हम लोग को पता है, इसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, माइनस लॉग ऑफ सी अल्फा इज इक्वल टू 4। इसका जो आपका यहाँ पे सी अल्फा निकल के आएगा, कितना आएगा, माइनस ऑफ एंटी लॉग ऑफ 4। सो इसका जो वैल्यू है माइनस एंटी लॉग ऑफ 4 का, ये हो गया आपका 10 टू द पावर -4, ये हो गया हमारा सी अल्फा। सो आप लोगों को पता ही चलेगा, अभी तो न्यूमेरिकल हो गया यहाँ पे, क्योंकि आपका सी का वैल्यू तो आपको पता ही है, इसमें आपका सी का वैल्यू पुट करना है 0.1 मल्टीप्लाइड बाय इसका अल्फा है 10 टू द पावर -4, यहाँ पे वैल्यू है इसका। सो आप क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.1, ठीक है ना, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। ये हो गया हमारा अल्फा का वैल्यू। अभी हम लोगों का सब है, अल्फा है, सी है, तो के तो हम निकाल सकेंगे। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे यह जो इक्वेशन है यहाँ पे बिठाएंगे, अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर के ए डिवाइडेड बाई सी। यहाँ पे जो अल्फा का वैल्यू है वो है 10 टू द पावर -3, यहाँ पे जो रूट ओवर है दे देंगे, के का वैल्यू कितना है निकालेंगे हम लोग, ये वैल्यू सी का वैल्यू कितना है 0.1, बोथ साइड स्क्वायर करोगे, कैलकुलेशन करोगे तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है ये एबीसी का क्वेश्चन है 74 या 75, आप लोग देख लेना जरा। फिर से हम लोग देखेंगे इसको क्या बताया यहाँ पे, कैलकुलेट द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ ए वीक एसिड whose pH is 4 and the solution was made by dissolving 0.0250 mole of it in 250 ml of water। क्या करेंगे हम लोग, पहले जो इसका K निकालना पड़ेगा हम लोगों को, ये पता चला हम लोगों को, इसको आयनाइजेशन कांस्टेंट मींस K। तो K निकालने का हमारे पास एक ही तरीका है, अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर K बाई सी, यही तरीका है, ठीक है। तो ठीक है, पहले हम लोग का क्या पता चलना पड़ेगा, सी निकालना पड़ेगा। सी कैसे निकालेंगे, मोलारिटी हम लोगों ने बहुत किया है। सो मोलारिटी कैसे निकालते हैं, मोल बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर आपका मिलीलीटर में है तो यहाँ पे आप लोग का क्या करना पड़ेगा, ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर के बाई सी, यहाँ पे हम लोगों ने बैठा दिया। सी इज इक्वल टू क्या होगा 0.1 मोल, यहाँ पे मोलार, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। तो अभी हम लोग का पीएच का इक्वेशन हम लोगों को पता है, इसका वीक एसिड का क्या है, माइनस लॉग ऑफ सी अल्फा। तो सी अल्फा का वैल्यू कितना है, वो हो गया आपका 4। तो सी अल्फा इज इक्वल टू माइनस एंटी लॉग ऑफ 4 यहाँ पे कर लेंगे हम लोग। तो इसका यहाँ पे सी का वैल्यू पुट करने से अल्फा का वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3। तो हम लोग को क्या पता है, हम लोग को पता है अल्फा से हम लोग के का मान, के का वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू रूट ओवर के बाई सी। सो यहाँ पे वी हैव जस्ट पुट द वैल्यू हियर एंड the numerical is over। So this is the way you can find out how to find out the K, okay। So this is a class of basic knowledges, okay। we are just going through the basic knowledges of the class। We will give you some videos actually in which we have done some problem solving, okay। We have done some problem solving of this type of questions, okay। We will definitely upload some videos where we will do some questions from MS Chauhan, Himanshu, N Avasthi, RC Mukherjee, etc. We will definitely give you some videos, okay। Now let us move on to the next topic, that is we have to finally understand
the Bronsted-Lowry acid base theory. Because without this theory, we will not be able to understand the buffer and the indicator titration numericals, which are definitely important for JEE Mains and JEE Advanced. NEET, for NEET, buffer is also important. So we have to finally understand what is Bronsted-Lowry theory. H plus acceptor is acid. Sorry. H plus acceptor is a base. H plus donor is acid. So you should remember this one. What is the reason why the Bronsted-Lowry theory, इसका जो मेकिंग है किस लिए हुआ? जो फर्स्टली है हम लोग का जो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, जो हम लोग क्लास 9 और 10th में पढ़ते हैं, जो हम लोग का जो यहाँ पे जो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, जो है आपका देखेंगे आप लोग, जैसे कि आपका हो गया आर्हेनियस थ्योरी में क्या होता है, the substances which can give H plus ion in aqueous solutions are known as the Arrhenius acids, and the substances which can donate OH minus are known as Arrhenius bases. So actually the theory is limited. Actually the theory is limited in case of acidic medium, in case of aqueous medium. इसका आपका aqueous medium में होना जरूरी है. जो भी substance आप dissolve होगा एक्वास में, पानी में, उसका आप एसिड बेस स्ट्रेंथ यहाँ पे निकाल सकते हैं. बट देयर आर मेनी सब्सटेंसेस व्हिच विल नॉट बी डिसॉल्व्ड इन, आपका जो है पानी में डिसॉल्व नहीं होगा. तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए जो है थ्योरी वो है ब्रॉन्स्टेड-लाउरी थ्योरी. इसका भी ड्रॉबैक है. इसका जो थ्योरी है वो ऐसा है कि जो आपका H प्लस और प्रोटॉन डोनर होता है, प्रोटॉन डोनर जो होता है वो होता है आपका एसिड, और प्रोटॉन जो एक्सेप्टर होता है वो होता है आपका बेस. सो लेट अस हैव सम एग्जांपल्स. इस जो थ्योरी है, थ्योरी में एक कॉन्जुगेट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट भी है. यू विल फाइंड आउट हियर. इसका जो है कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी भी है. कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक एग्जांपल यहाँ पे. यू शुड रिमेंबर दिस वन. अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लाउरी थ्योरी, a strong acid will have a weak conjugate base. A weak acid will have a strong conjugate base. ओके, वैसे वर्षा बेस के लिए भी है, ठीक है, बेस के लिए भी आप ऐसे ही होता है. स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड जो है वो वीकर होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा. आप लोग इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है. जैसे कि आपको लगता है HF और HI में कौन सा वाला ज्यादा एसिडिक है, जो यहाँ पे बच्चे लोग यहाँ पे गलती करते हैं, तो यहाँ पे वो लोग HF को आंसर लिखते हैं. एक्चुअली HI इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड. इसका रीजन क्या है? रीजन आप यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं. पहले देखिए, HF को आप लोग यहाँ पे डिसोसिएट कर दीजिए. यहाँ पे आपका निकलेगा H प्लस और यहाँ पे आएगा आपका HF माइनस. और HI को डिसोसिएट करिए तो इसका आएगा H प्लस और यहाँ पे आएगा आपका I माइनस. तो ये है आपका एसिड जो HF है. इसका जो है बेस है, ये है कॉन्जुगेट बेस CB. ये जो है आपका एसिड हो गया, ये हो गया आपका कॉन्जुगेट बेस. हम लोगों को ये लाइन समझ में आना चाहिए. A weak acid will have a strong conjugate base. अभी देखेंगे आप लोग F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस. इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है, I माइनस इज द लीस्ट बेसिक, और जो F माइनस है ये है आपका मोस्ट बेसिक. तो अभी आप क्या करेंगे? लीस्ट बेसिक कौन सा है? I माइनस इज द लीस्ट बेसिक. इसे लीस्ट बेसिक कौन सा है? I माइनस इज द लीस्ट बेसिक. तो इसका देखिए, इसका जो ये जो बेस है, ये कॉन्जुगेट बेस इज वीकेस्ट बेस. सो ये जो एसिड है वो हो गया आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड.
सो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, a weakest acid will have a strongest conjugate base, a strongest acid will have a weakest conjugate base। अभी आप लोग यहाँ पे, मैं कब फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे HF को यहाँ पे डिसोसिएट करने से यहाँ पे H प्लस और F माइनस निकल के आएगा, जहाँ पे एसिड है आपका HF, और यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस जो है वो है आपका F माइनस। और दूसरी तरफ HI को यहाँ पे निकलने से क्या आएगा, H प्लस आएगा, उसके साथ में आएगा आपका I माइनस। जो इसका बेस है वो है आपका वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस, जिसका एसिड जो है HI वो होगा आपका स्ट्रॉन्गेस्ट। सो आपको कोई पूछे एग्जामिनेशन हॉल में तो HF और HI में कौन सा ज्यादा एसिडिक है, तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हो कि HI इज द मोर एसिडिक देन HF। सो उसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट में जो हम लोगों का न्यूट्रलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। सपोज आप लोग यहाँ पे पानी के अंदर पानी यहाँ पे पोर कर रहे हो, यू आर एडिंग H2O into H2O, that will produce here H3O plus that will produce OH minus। अभी आप क्या करोगे, आप देखेंगे वाटर इज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस, आप लोग को पता होगा ये अगर आपका वीक एसिड के जैसा बिहेव करेगा, ये आपका वीक बेस की तरह बिहेव करेगा, बिकॉज वाटर इज एम्फोटेरिक सब्सटेंस। जो एसिड है वो वीक है, इसीलिए इसका जो बेस है कॉन्जुगेट बेस वो होगा आपका स्ट्रॉन्गेस्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग। आपका जो ये बेस है, ये बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग Ca। तो पानी में अंदर पानी पोर करने से क्या होता है, whenever you add water in water there is a acid base reaction going on according to the Bronsted-Lowry concept, but you cannot do the neutralization reaction with the help of an indicator here because they both of them are strong weak acids and weak bases। okay, so water is an amphoteric substance, we have seen it। so neutralization occurs whenever you pour water into water in case of Bronsted-Lowry theory। again there is another example you can see here। if anyone asks you आप लोगों को किसी ने यहाँ पे पूछ लिया कि ये आपका एसिडिक, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है या कम है, आप लोग क्या करेंगे। ये एग्जामिनेशन में आता है, आप लोग ऑर्गेनिक में बहुत इसका क्वेश्चन आता है। तो हमारा जो ऑर्गेनिक का वीडियो है, मेरा जो चैनल है यूट्यूब में इंडिया पढ़ो इंडिया भरो, उसके अंदर आपको ये वीडियो मिल जाएगा ऑर्गेनिक के एसिड बेस स्ट्रेंथ का। इसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने पूरा डिटेल्स में कर दिया है, इंग्लिश मीडियम का भी है, बंगाली मीडियम का भी है, तो आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं। सो ऑर्गेनिक का जो है इसमें आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे जो कौन सा वाला ज्यादा एसिडिक है, वही कॉन्सेप्ट एक ही है, आप लोग को यहाँ पर पता चलना चाहिए। और यहाँ पे याद रखना है, स्ट्रॉन्गर स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस, हायर द स्टेबिलिटी of the conjugate base, stronger is the acidic strength। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग। इसका जो मीनिंग है वो है ऐसा कि CF3SO3H जो है, अब देखेंगे यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे एक H प्लस यहाँ पे छोड़ देगा H प्लस, इसका H प्लस छोड़ने से क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर, इसको देखिए हम लोग, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। तो आप लोगों ने सम जीओसी में सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा मुझे लगता है, क्योंकि ये आपका टर्म 1 के सिलेबस में है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो सीबीएसई का सिलेबस है टर्म 1 का, जो आपका स्कूल में एग्जाम होगा, तो आप लोग देखेंगे जो माइनस चार्ज है ये यहाँ पे कॉन्जुगेशन में है और रेजोनेंस में है, और नीचे के अंदर भी ये, नीचे भी ये रेजोनेंस में है। और मोर ओवर आप देखेंगे जो एफ है ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो दिस विल ऑल्सो विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हियर। जो ए आयन है इसका नाम हो गया आपका ट्राइफ्लेट आयन, क्या हो गया आपका नाम इसका, ट्राइफ्लेट आयन, ट्राइफ्लेट। अब देखेंगे ये जो माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज इज हाईली स्टेबल, द कॉन्जुगेट बेस is highly stable due to the resonance
एंड माइनस आई इफेक्ट। सो ये जो है आपका ये जो आपका माइनस चार्ज है, it gets distributed over a large amount of area that becomes stable in nature. So इसके लिए आपको क्या होगा, स्टेबल हो जाने से क्या होगा, आप देखेंगे इसको, ये जो आयन है वो स्टेबिलाईज हो जाता है। सो इसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यहाँ पे घट जाएगा। सो इसका स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ट्राइफ्लेट आयन बहुत ज्यादा है स्टेबिलिटी इसका। तो ये जो एसिड है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, इसके अंदर एक कॉम्पोजिशन मिक्सअप करते हैं हम लोग, SbF5 एंटीमोनी पेंटाफ्लोराइड। जो इसका जो नाम है वो नाम है ऐसा, ट्राइफ्लोरो मिथाइल सल्फोनिक एसिड, और इसका जो नाम है एंटीमोनी पेंटाफ्लोराइड। सो ये जो आपका हो गया एंटीमोनी पेंटाफ्लोराइड और ट्राइफ्लोरो मिथाइल सल्फोनिक एसिड, इसके अंदर आप लोगों को ये जो कंपोजिशन है इसको बोलते हैं मैजिक एसिड, और इसको बोलते हैं आप लोगों का सुपर एसिड। तो आप लोग देखेंगे जो सुपर एसिड है इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। दे कैन डिसॉल्व प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स आल्सो, सो दिस इज कॉल्ड द सुपर एसिड और मैजिक एसिड। तो हम लोगों को और एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा बार आ चुका है क्वेश्चन, ये आप लोगों को पता है, क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो कंपाउंड है ये एसिडिक है या बेसिक है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है या कम है। ऑब्वियसली इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, आप लोग क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो H है इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए, करके यहाँ पे एक कॉन्जुगेट, यहाँ पे एक माइनस चार्ज दे दीजिए जो आपका कॉन्जुगेट बेस की तरह काम करेगा। अब अभी आपका एक ही काम है, अभी आप यहाँ पे देखिए कॉन्जुगेट बेस जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है वो स्टेबल है कि नहीं है, वो स्टेबल है क्या नहीं है। इफ स्टेबल हो गया, जो स्टेबल हो गया कॉन्जुगेट बेस, तो जो ये जो कंपाउंड है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ही हाई होगा, वेरी हाई, ठीक है। तो आपको ये पता चल जाएगा, अभी पता लग गया होगा कि आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका जो आपका कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबल होता है और वीकर होता है, ठीक है। सो यू शुड रिमेंबर दिस वन। सो न्यूट्रलाइजेशन according to Bronsted-Lowry theory, H2O plus H2O, there will be a acid base neutralization. Okay, so this will be the Bronsted-Lowry theory. इसका जो एक ड्रॉबैक है, इसके लिए हम लोगों को इसका जो नेक्स्ट वर्जन है वो है आपका लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसेस। तो उसके लिए हम लोग को इसका ड्रॉबैक में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद लुईस कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। तो एक बात यहाँ पे देख लेते हैं, जो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है अभी इसका जो कॉन्सेप्ट है उसे प्रोटॉन डोनेट करना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये ऐसा बहुत कंपाउंड है जिसके ऊपर जिसके पास कोई भी प्रोटॉन नहीं है, ठीक है, तो वो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी नहीं करता है लेकिन बेस की तरह बिहेव करता है। तो उसका जो आपका जो बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई दूसरा थ्योरी तो चाहिए होगा ना। वो जो थ्योरी है वही होता है आपका लुईस कॉन्सेप्ट, इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। इन द मॉडर्न डेज जनरली द लुईस कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट फेवर्ड कॉन्सेप्ट। इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। जो आपको इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो होगा आपका बेस, जो इलेक्ट्रॉन आप गेन करेंगे उसको होगा आपका एसिड। ओके, सो दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। ओके ओके, नाउ हम लोग जो देखेंगे इसमें एक और भी एक चीज है जिसका पीएच आपको यहाँ पे निकालने के लिए बोला जाएगा, बफर सॉल्यूशन क्या होता है। आई विल नॉट मेक दिस वीडियो वेरी लॉन्ग, जितना भी हो सकता है हम लोग 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा तो स्टूडेंट को बोरिंग लग सकता है, ठीक है। तो बफर सॉल्यूशन, व्हाट इज द बफर सॉल्यूशन? बफर सॉल्यूशन इज a solution in which if a small amount of acid or base is added, the pH remains virtually constant. इसका जो pH है वो यहाँ पे constant रह जाएगा। If a small amount of acid or base is added, the pH will remain constant. देखेंगे आप बफर यहाँ पे 2 तरीके का हो सकता है। एक होता है आपका एसिडिक बफर,
दूसरा होता है आपका बेसिक बफर। जो है आपका एसिडिक बफर और बेसिक बफर। कैसे करेंगे देखते हैं। व्हाट इज द एसिडिक बफर? एसिडिक बफर इज ए मिक्सचर ऑफ weak acid प्लस इट्स स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक एग्जांपल नहीं, 2-3 एग्जांपल देखेंगे। वीक एसिड क्या है? वीक एसिड एसिडिक एसिड प्लस इसका जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है CH3COONA, बिकॉज इसको एक स्ट्रॉन्ग बेस के अगेंस्ट टाइट्रेशन करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे ये होगा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। इसका होता है क्या होता है? जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के अगेंस्ट टाइट्रेशन किया, ठीक है। अगेन देखिए HNO2 नाइट्रस एसिड, एक वीक एसिड, इसका जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है NaNO2, अगेन सोडियम हाइड्रोक्साइड के अगेंस्ट इसको टाइट्रेशन किया, उसके बाद ये सॉल्ट निकल के आया। उसके बाद देखेंगे हम लोग ऑक्सालिक एसिड, इसका जो सॉल्ट है सोडियम ऑक्सालेट, सोडियम ऑक्सालेट COONA। उसके बाद देखेंगे हम लोग HCN जो है हाइड्रोसायनिक एसिड है, इसका जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है इसका हो गया आपका NaCN। तो हमारा बफर सॉल्यूशन क्या है? बफर सॉल्यूशन है एक स्पेशल काइंड ऑफ सॉल्यूशन होता है। इसमें आप लोग देखते हैं ना, आपका जो बफर स्टॉक होता है, बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक में क्या होता है, जो आपका दुकान का शायद आपका स्टॉक खत्म हो गया, इसका एक बफर स्टॉक रखते हैं, क्योंकि आपको कस्टमर को देना है तो वहां से निकल के आप यहाँ पे लाएंगे। तो बफर सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन ऐसा है कि इसमें आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस ऐड करोगे तो उसका आपका पीएच का जो चेंज है वो नहीं होगा। तो रेंज क्या है इसका? बफर का रेंज जो है वो है आपका pH इक्वल टू pKa प्लस माइनस 1, pKa प्लस माइनस 1, हम लोग देखेंगे इसको बाद में। सो यहाँ पे pH जो है वो निकालने के लिए, वो बफर का pH निकालने के लिए एक बहुत ही एनसीईआरटी के अंदर है, हम लोग अभी तक एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं। जो इक्वेशन है वो है हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन, pH इक्वल्स टू pKa प्लस log ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड, ठीक है। सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है ये है सॉल्ट का मोलारिटी, और इसके बाद होगा आपका एसिड का मोलारिटी। तो ये pH इक्वल्स टू pKa प्लस log सॉल्ट बाय एसिड, और बेस का निकालने के लिए POH इज इक्वल्स टू वही है आपका pKb प्लस log ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। ये है आपका इक्वेशन। आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा होगा pKa pKb कैसे निकालते हैं, वो कोई बात नहीं है। pKa इज इक्वल्स टू, हम लोगों ने पिछले कुछ देर पहले K पढ़ा था ना, pK इज इक्वल्स टू माइनस log ऑफ Ka एंड pKb इज इक्वल्स टू माइनस log ऑफ Kb। वी विल नॉट मेक दिस वीडियो लॉन्गर, हम लोग देखेंगे बेसिक बफर का एक एग्जांपल हम लोग दे देते हैं यहाँ पे NH4OH, उसके साथ हो गया आपका NH4Cl। तो आप लोगों को यहाँ पे वीडियो में यहाँ पे एंड कर रहा हो, हम लोग हमारा नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे जो बफर का कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। ये हम लोगों ने आज जो है चैप्टर में बेसिक कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कस की है। वी विल सी द वीडियोस, वी विल डू वीडियोस ऑन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आप लोगों को एक इसका जो और भी कुछ वीडियो है आपको मिल जाएगा हमारे चैनल में, तो आप लोग वहां पे जाके भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।